This is perhaps one of the most exciting messages and news we could have ever heard in recent times. After years and years of speculation, conspiracy theories, and lot of research, finally we have found evidences of life in outer space. अब सही सुन रहे हैं कि लाइफ आउटर स्पेस में है, ये अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है. एंड खुशी की बात ये है, दिस हैज बीन फाउंड एंड एस्टैब्लिश्ड बाय एन इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट कॉल्ड निकू मधुसूदन. Niku Matsudan is an alumni of IIT BHU. He went on to do his research and masters in MIT और अभी वो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में. इन्होंने डिस्कवर किया है दैट ऑन एन एक्सोप्लैनेट K218b जो कि अप्रोक्सीमेटली 120 लाइट ईयर्स अवे है, वहां पर लाइफ का होना बहुत पॉसिबिलिटी है. कोई भी लाइफ के पॉसिबिलिटी का वजह और इंडिकेटर्स कुछ हो सकते हैं. वी कॉल दोज एज बायोसिग्नेचर्स. One very important biosignature is presence of water. The second very important biosignature is the low concentration of carbon dioxide in the planet's atmosphere. Because the CO2 कम है मतलब is some process, खासकर the biological process जो कि CO2 atmosphere से खींच लेता है. Something like what's happening in case of Earth. And third is the presence of sulfide compounds. एक पहले वीडियो मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ वोल्केनिज्म होता है, वहाँ पर सल्फर कंपाउंड्स बहुत होते हैं. And those areas are the beginnings of life and its evolution. Earth के surface में जब life हुआ था, sulfide compounds was a very important reason why life was possible with the formation of the first cyanobacteria. इसके अलावा एक type of compound है called as DMS, dimethyl sulfide. This is a major waste of biological processes. And निको मधुसूदन ने यही discover किया है. He discovered the presence of high proportion of DMS in the exoplanet called as K218b, जो कि 120 light years away. Now, what he can tell us is that although quick confirmation नहीं है 100%, but DMS का इतने परसेंटेज में होना, इसका मतलब ये है कि वहां पर बहुत बड़ा ओशन है and the ocean is brimming with life. I'm reading a sentence in his words, Niku Madhusudan के words में. He said, it is no one's interest to claim prematurely that we have detected life. Still, the best explanations for our observations in K218b is that it's covered with warm oceans brimming with life. अब ये exoplanets क्या होते हैं? ये वो planets हैं जो कि other than a solar system, किसी और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं. एंड these exoplanets अगर वो अर्थ जैसे हैं, इज वेरी मच पॉसिबल दैट देयर कैन बी लाइफ. वी हैव हैड क्वेश्चंस अराउंड व्हाट इज गोल्डीलॉक्स जोन. ये उसी से लिंक्ड है. ये जो एक्सोप्लैनेट है K218b, it is revolving around another star under sun, which is not so hot. It's a cool dwarf star. It's not very hot like sun, but सही डिस्टेंस होने की वजह से वहां पर लाइफ पॉसिबल. नाउ निको मधुसूदन का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, द कंसेप्ट ऑफ हेकियन प्लैनेट्स. HYCANS, Hakian planets, which basically means planets which have high proportion of hydrogen. They have hydrogen rich atmosphere and surfaces. अगर हाइड्रोजन होता है, अगेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेरी हाईली पॉसिबल, एंड अगेन वहां पर लाइफ पॉसिबिलिटी होता है. सो ये सब कंसेप्ट जो है, एक्सोप्लैनेट क्या है, व्हाट इज अ कूल ड्वार्फ और a small dwarf star, what is the meaning of Hakian planet, the importance of DMS, dimethyl sulfide, यानी कि कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन सल्फाइड है. ये टुगेदर आर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो. ना एक और कंसेप्ट आता है कॉल्ड फर्मी पैराडॉक्स. एक स्कॉलर थे, फिजिसिस्ट थे, कॉल्ड एज एर्निको फर्मी. वो कहते हैं कि इतने बड़े ब्रह्मांड में, such a huge universe we have and trillions of bodies we have, and the probability of life इतने high होने के बावजूद we have not found confirmed evidence of life. But with Nico Madhusudan giving us this type of an observation, अब शायद एर्निको फर्मी का फर्मी पैराडॉक्स भी अब धीरे धीरे less relevant हो जाएगा. This exoplanet was discovered in 2017 and using James Webb Space Telescope हमने डिस्कवर किया है. आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं. रिसेंटली AI मॉडल डेवलप किया गया. इट्स कॉल्ड एज AI अर्थ लाइक प्लैनेट प्रेडिक्टर. Okay, and this has been developed by the University of Bern and National Center of Competence in Research Planets, NCCR Planets, जो कि स्विट्जरलैंड में है. इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है AI वाला, which can predict and tell us कि कितने सारे planets और अर्थ जैसे हैं in the solar system and around it. And the AI says there are 44 such systems which are possible. And scholars say that this particular AI is almost 99% correct. Okay, which means
ये सब कुछ अब साथ हो रहा है। एक तरफ द डिस्कवरी बाय निको मधुसूदन, सेकंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द एआई प्रेडिक्टिंग कि 44 सिस्टम्स हैं जो कि अर्थ लाइक सिस्टम्स हैं एंड उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होने की वजह से नाउ इट्स ऑलमोस्ट कंफर्म दैट देयर इज लाइफ पॉसिबल इन आउटर स्पेस। एक इंटरेस्टिंग बात इसके साथ बता रहे हैं, देयर वाज अ बुल्गारियन मिस्टिक यानी कि एक संत हैं, एक बाबा थे, कॉल्ड एज बाबा वांगा। बाबा वांगा ने प्रिडिक्ट किया था बहुत सारी चीज। इनफैक्ट शी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोर मॉडर्न नोस्ट्राडामस। नोस्ट्राडामस एक एक थिंकर थे, फिलोसोफर थे, वो भी शायद संत बाबा जैसे थे, फ्रांस में थे, तो इन्होंने बहुत सारा प्रिडिक्शन किया था। बाबा वांगा इज कंसिडर्ड मॉडर्न वर्जन ऑफ नोस्ट्राडामस। उनकी डेथ भी 1990s में हुई है। और बाबा वांगा ने बहुत सा प्रिडिक्शंस किया था लाइक द 9/11 अटैक। शी आल्सो प्रेडिक्टेड द रशियन यूक्रेन वॉर एंड 25 को उन्होंने कहा था कि 25 विल बी अ मैसिव अर्थक्वेक जो आपका म्यांमार में हो गया और सुनामी भी हो चुका टोंगा में। She also predicted that Europe will go through a massive war and probably 25 will mark the decline of humanity. हालांकि डरने वाली बात नहीं है, ओके, बिकॉज शी सेज दैट ह्यूमैनिटी शायद खत्म होगा 33,000 सम एडी में, ओके, एंड प्रोबेबली अर्थ विल गेट ओवर बाय 5,000 ऑड एडी, बट शी हैड प्रेडिक्टेड कि मैन विल फर्स्ट एनकाउंटर एलियंस बाय 2125, 2125 एडी में मैन विल कनेक्ट विथ एलियंस एंड शी सेड दैट ये कनेक्ट पहली बार हंगरी में होगा, the country called Hungary. So now all of this put together, basically this exciting news that the life possible है। शायद मुश्किल रहा ढूंढने के लिए, अभी भी कुछ कुछ confirmation होंगे, but with all this coming together, we are sure now that we are probably not alone in our universe. Keep watching our videos. Shabbir from Educame.